BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کانٹریکٹ ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی میں کانگریس حکومت کی ناکامی پر تنقید کی اور کہا کہ کانٹریکٹ ورکرز کے علاوہ آؤٹ سورسنگ ورکرز کو تنخواہیں ادا کرنے میں کانگریس کی زیر قیادت حکومت ناکام ہو گئی ہے اور مذکورہ ورکرز 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنائے اور محنت کش خاندانوں کو راحت فراہم کرے۔ KT راما راؤ نے کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ورکرز کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ پنچایت سٹاف، میونسپلٹی ورکرز کے علاوہ ہاسپٹل اور ہاسٹل امپلائیز کو بھی تنخواہوں کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹ لیکچررز کو بھی تنخواہیں نہ دیے جانے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی، جبکہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملازمین کو بروقت تنخواہیں اور مشاہرہ ادا کرے گی۔ کئی خاندانوں کو مشکلات پیش آ رہی کیونکہ مشاہرہ اور تنخواہیں ادا نہیں کی گئی۔ روزانہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہیں مسائل پیش آ رہے۔ یہ محنت کش افراد جو کہ زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں دسہرہ اور دوسرے فیسٹیول کے دوران مسائل میں مزید اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ حکومت انہیں تنخواہیں ادا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ کانگریس حکومت کو صرف 10 ماہ میں ہی 80 کروڑ کا قرض ہو گیا۔ تلنگانہ حکومت نے سابق جج مدراس ہائی کورٹ جسٹس دیوراجو ناگارجن کو تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹرک ریگولیٹری کمیشن کا نیا چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جسٹس ناگارجن کی تقرری کو منظوری دے دی۔ موجودہ چیئرمین ٹی سری رنگا راؤ کی میعاد 29 اکتوبر کو ختم ہو رہی اور جسٹس ناگارجن کے اسی دن اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی توقع ہے۔ جسٹس ناگارجن کی پیدائش تلنگانہ کے وناپرتی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی گریجویشن کی تعلیم RLG کالج میں حاصل کی اور LLB SSL لاء کالج ناندیڑ سے کی۔ بعد ازاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری حاصل کی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں بین الاقوامی تنازعات کے حل میں تحقیق کے لیے اسکالرشپ حاصل کی۔ انہیں 2013 میں نلسار یونیورسٹی آف لاء نے تحقیق کے لیے PhD کی ڈگری دی۔ انہوں نے 1986 میں وکیل کی حیثیت سے رجسٹریشن کروایا اور سول اور فوجداری معاملات میں پریکٹس کی۔ 1991 میں انہیں جونیئر سول جج منتخب کیا گیا اور 2004 میں سینئر سول جج کے طور پر ترقی دی گئی۔ انہوں نے چیف جسٹس کے پرنسپل پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ 2010 میں انہیں ڈسٹرکٹ جج کے طور پر ترقی دی گئی اور انہوں نے کاماریڈی، نظام آباد اور رنگا ریڈی کی عدالت میں میٹروپولیٹن سیشن جج کی حیثیت سے کام کیا۔ ایجنٹ کے دھوکے کے سبب تلنگانہ کا ایک نوجوان عراق میں پھنس گیا۔ تفصیلات کے مطابق اس نوجوان، جس کی شناخت ضلع جگتیال کے سارنگا پور منڈل سے تعلق رکھنے والے اجے کے طور پر کی گئی ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھیجی گئی سیلفی ویڈیو میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایجنٹ نے اس کو پرکشش ملازمت کا وعدہ کرتے ہوئے عراق بھجوایا تھا، تاہم وہ عراق میں پھنس گیا اور کافی مشکلات کا سامنا کر رہا۔ اس نے کہا ہے کہ اس کا پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور گھر واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے ارکان خاندان اور حکومت ہند سے خواہش کی کہ اس کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ పైసలు కూడా ఇంటికాడికి పంపించుకున్నాను సార్. ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా నాకు సరిగ్గా లేదు సార్. ఒక్కరోజు కూడా చక్కగా ఫుడ్ లేదు సార్. ఒక్కసారి తింటున్నా సార్. రోజుకి ఒక్కసారి కూడా తిన్నాను. ఒక్కొక్క రోజులు ఉన్నాయి సార్. తినకుండా పడుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి సార్. ప్లీజ్ సార్, నన్ను ఎట్లా నేసి ఇండియాకి తీసుకోవాలి సార్. ప్లీజ్ సార్. ఇక్కడ బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ఇక్కడ బయటకు పని చూసుకుందామని నాకేం భాష రాదు సార్. ఇక్కడ లోకల్ భాష. تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے پوچھا کہ چندرشیکھر راؤ حکومت نے گزشتہ 10 سالوں میں کتنی ملازمتیں دی۔ کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں وزراء سے ملاقات کا پروگرام منعقد ہوا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ریونت ریڈی حکومت خلوص نیت سے ملازمتوں کو پور کرنے کے اقدامات کر رہی۔ طلبہ اور بے روزگاروں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس حکومت سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پچھلی حکومت نے صرف 150 افراد کو فارن ایجوکیشن فنڈ تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کانگریس حکومت 500 افراد کو مختلف غیر ملکی ممالک میں تعلیم دے رہی۔ پونم پربھاکر نے حکومت کے خلاف سابق وزیر جگدیش ریڈی کے تبصروں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا، ہم موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے حصے کے طور پر بے گھر افراد کی باز آباد کاری کر رہے۔ انہوں نے ڈبل بیڈ روم والے مکان فراہم کرنے کے علاوہ بے گھر افراد کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی اقدامات کریں گے اور کہا کہ ہم حکومت کی طرف سے ذات پات کی مردم شماری کروائیں گے۔
ये बीओटी टॉयलेट्स का जो ग्राउंडिंग इश्यूज है हम ऑलरेडी सिटी में जो भी टॉयलेट्स हैं उसका पूरा वी आर डूइंग अ सर्वे सर, हम 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट किए थे। सारे टॉयलेट्स का सर्वे कर रहे हैं कि जो मेंटेन है, जो अनमेंटेन है, लॉक हुए हैं, उसका हम कंसोलिडेट करके वी विल सी हाउ आपको इन्वॉल्व करके आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको ग्राउंडिंग का तकलीफ हो रहा है वी विल सी अगर उनको फोर्स करना है या दूसरी जगह लेना है, ये भी हम वी विल वर्क इट आउट। द रीजन ये डीसी के हाथ में दिए हैं सर, इसकी उनके हाथ में तो वो लोकल इशू सॉल्व कर पाएंगे, कमिश्नर को पता नहीं चलता है, बट वी विल वर्क टुगेदर सो दैट आपकी सारी तकलीफ सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट टाइम मीटिंग का इन्फॉर्मेशन जल्दी देंगे सो दैट ये कंफ्यूजन नहीं होगा सर। एंड जो भी पॉलिसी इश्यूज रेज हुए हैं वो सब मिनट हो चुके हैं कि सैलरी बढ़ाना है या नए जॉब, स्कॉलरशिप, आउटसोर्सिंग, रेगुलराइजेशन, ये सब हम गवर्नमेंट को लिखेंगे और वी विल मेक श्योर दैट जो भी सरकार की डिस्ट्रिक्ट में है वी विल कंप्लाई एंड आपको जो भी फैसिलिटीज आना है वी विल। जायजा लिया। इस मौके पर वाल्मीकि एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कमीशन के अरकान की तवज्जो में वाल्मीकि बरादरी को दरपेश कई मसाइल से आगाह किया। कमीशन के अरकान ने पीपी वावा से सफाई के कारकुनों के लिए लागू की जाने वाली स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में भी पूछा। जीएचएमसी कमिश्नर ने कहा है कि मुतल्लिका नुमाइंदों की तरफ से दी गई तमाम शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। देंगे सो दैट ये कंफ्यूजन नहीं होगा सर। एंड जो भी पॉलिसी इश्यूज रेज हुए हैं वो सब मिनट हो चुके हैं कि सैलरी बढ़ाना है या नए जॉब, स्कॉलरशिप, आउटसोर्सिंग, रेगुलराइजेशन, ये सब हम गवर्नमेंट को लिखेंगे और वी विल मेक श्योर दैट जो भी सरकार की डिस्ट्रिक्ट में है वी विल कंप्लाई एंड आपको जो भी फैसिलिटीज आना है वी विल। खातून से बदसलूकी करने वाले की पिटाई कर दी गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट के नए बस स्टैंड के करीब एक शख्स ने अपनी जान पहचान की खातून से बदसलूकी की, जिस पर मुकामी अफराद जमा हो गए। इन मुकामी अफराद और खातून के अरकान ख़ानदान ने इस शख्स की लाठियों से पिटाई कर दी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भैंसा में साल 2019 में मुसलमानों की जानिब से एनआरसी की मुखालिफत में रैली निकालने पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए अज खुद सोमोटो 14 मुस्लिम जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जो भैंसा जूनियर सिविल कोर्ट में ज़ेर दौरान थे, जिसकी अदालत में पैरवी मोहम्मद मुनीर अहमद एडवोकेट, मोहम्मद इम्तियाजुल हक एडवोकेट, मोहम्मद सईद अहमद एडवोकेट और डब्ल्यू भीमराव एडवोकेट ने की थी। भैंसा जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देवेंद्र बाबू ने मुकदमा मुलविस मुस्लिम जिम्मेदारान, जिनमें हाफिज अब्दुल लतीफ इमाम व खतीब मस्जिद पंजिशा, मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, ज़िले सदर जमीयतुल उलमा फैजुल्लाह खान, टाउन सदर मजलिस व फ्लोर लीडर बल्दिया और मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, एसके कदीर, मिर्जा इद्रिस बेग और नुमाइंदा कौंसलर एम.ए. लतीफ़, मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद कांग्रेस अक़लियती इंचार्ज शेख अहद साहिल, अजहर अहमद खान और मोहम्मद इब्राहिम और सैयद फ़िरोज़ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया, जिस पर तमाम ने अदालत के फ़ैसले का खैर मक़दम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इज़हार तशक्कुर किया। एडवोकेट जो है सो हर अपने मुवक्किल की जो है सो तायद में नुमाइंदगी की, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज के कोर्ट ने इन सब लोगों को बाइज़्ज़त बरी किया। तो इंशाअल्लाह ये जो कायदीन जो है ये कुछ उनका अपना मसला नहीं था, बावजूद उसके आज 4-5 साल से कोर्ट के अहकामात की पर अमल आवारी करते हुए जो है सो मुसलसल कोर्ट पर टाइम से हाज़िरी दिए, जिसके लिए इनको बहुत से मुश्किलात का सामना करना, बावजूद उसके वो उन तमाम परेशानियों को अपनी मसरूफियात को दूर रखते हुए कौम और मिल्लत का मामला है बोलकर बराबर कोर्ट के अहकामात की पैरवी करते हुए आज कोर्ट में कोर्ट को बराबर हाजिर होते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की दुआओं से और हम लोगों की कोशिशों से और इनकी जो है सो कोर्ट के अहकामात पे वक्त पर पाबंदी की वजह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने इनको बाइज़्ज़त बरी किया। सीपीएम जिले आदिलाबाद सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने 7, 8 और 9 नवंबर को होने वाली सीपीएम जिले की 13वीं महासभा को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने सीपीएम मेंबरान के हमरा आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के सुंदरिया भवन में मुनक़दा एक तकरीब में 13वीं महासभा के पैम्फलेट्स की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने महासभा की तफसीलात का इंकशाफ करते हुए बताया कि जिले महासभा में पार्टी की कौमी कायद वृंदा करात बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगी। उन्होंने बताया कि इस महासभा में पार्टी की
की ऑल इंडिया क़यादत और रियासती क़यादत के साथ साथ ज़िले क़ायदीन कारकुनान तकरीबन 300 मदुबीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर लीडरान लंका राघु, बंडी दत्तात्रेय, किरण सचिन और मंजुला के अलावा दीगर मौजूद थे। పాల్గొననున్నారు। మొదటి రోజు బహిరంగ సభ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం 10,000 మందితో। ఈ మహాసభల జయప్రదానికి మా శ్రేయోభిలాషులు, కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఉద్యమ శ్రేయోభిలాషులు, జిల్లా అభివృద్ధిని ఆకాంక్షించేటటువంటి ప్రజలందరూ కూడా తమ యొక్క ఆర్థిక సహాయ సహకారాలు అందించి ఈ మహాసభల్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। ఆదిలాబాద్ జిల్లా పారిశ్రామికంగా కానీ వ్యవసాయ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने समर आवर बातचीत की थी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील के लिए ताउन करने पर उन्होंने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मज़कूरा प्रोजेक्ट पर तखमीना की नज़रसानी शुदा लागत की काबीना की मंजूरी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया और कहा कि सदर मुकाम अमरावती के ताल्लुक से भी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ माऊन है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने मज़ीद बताया कि उन्होंने नई दिल्ली का दौरा करके वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की, जिसमें सदर मुकाम अमरावती और पोलावरम प्रोजेक्ट भी शामिल है। चंद्रबाबू नायडू ने मज़ीद बताया कि आंध्र प्रदेश में किए जाने वाले तरक्याती इक़दामात से भी वज़ीर आज़म को वाकिफ़ करवाया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इश्तराक व ताउन करते हुए तयख़ुनात दिए जाने पर वो मशकूर हैं। अमरावती शहर के ताल्लुक से तायद करने पर भी उन्होंने सताइश की है। एक दूसरे पोस्ट में चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उन्होंने मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु से मुलाकात की और रेलवे जोन के ताल्लुक से दिए गए तयख़ुनात पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि रेलवे से मुतल्लिक़ देरीना मसाइल और मुतालबात की यकसोई के लिए मरकज़ी वज़ीर ने तयख़ुन दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को वसी पैमाने पर अपनाने की हौसला अफजाई के लिए यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 के सार्फिन के लिए अदायगी की हद बढ़ाने का फैसला किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने कहा यूपीआई 123 मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद फीचर फोन सार्फिन को यूपीआई इस्तेमाल करने का अहल बनाना था। ये फीचर अब 12 जुबानों में दस्तयाब है। फिलहाल यूपीआई 123 पे में फी लेन देन की हद 5,000 रुपये तक महदूद है। इस्तेमाल के मामलात को वसी करने के लिए मुतल्लिक़ीन की मशावरत से फ़ी ट्रांसैक्शन की हद को 10,000 रुपये तक बढ़ाने का फ़ैसला किया गया। एनपीसीआई को जल्द ही ज़रूरी हिदायत जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यूपीआई लाइट की फ़ी लेन देन की हद फ़िलहाल 500 रुपये है और यूपीआई लाइट वॉलेट्स के लिए 2,000 रुपये की मजमूई हद नाफिज है, जिसमें ऑटो रिप्लेसमेंट और की सहूलत भी शामिल है। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के दायरेकार को वसअत देने के लिए अब यूपीआई लाइट वॉलेट की हद को 5,000 रुपये और फी ट्रांसैक्शन की हद को बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का फैसला किया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के हज़ारों अरकान को हलाक कर दिया है, जिनमें ग्रुप के मारे गए रहनुमा हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन भी शामिल हैं। ये बयान नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से लिबनान के अवाम के नाम जारी किए गए एक वीडियो पैगाम में दिया गया, जिसमें उन्होंने हिज़्बुल्लाह ग्रुप को मुल्क में जारी बहरान पर कहा है और बहरान की वजह बताया है और हिज़्बुल्लाह पर जोर दिया कि वो लिबनान को आज़ाद कर दे। नेतन्याहू ने कहा कि हमने हिज़्बुल्लाह की सलाहियतों को कम कर दिया है, हमने हज़ारों शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है, जिनमें नसरुल्लाह और उनके जानशीन भी शामिल हैं।